हेलो एचपी टेक एंड सी टेक एस्पायरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय चैनल प्रो पैडागोजी। और आप जैसे कि जानते हैं कि आज जो हम करने वाले हैं वो है टेस्ट सीरीज नंबर 3। अगर आपने पहली 2 सीरीज नहीं देखी हैं तो उन्हें भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि मुझे पता है इनमें से क्वेश्चन जो है वो आपको आने वाले हैं। इनको करने के बाद आप सभी टॉपिक्स, पेडागोजी और साइकोलॉजी के सभी टॉपिक को आप एक बार रिकॉल कर पाएंगे, तभी आपके आएंगे 30 आउट ऑफ 30। तो इन वीडियोस को एंड तक देखें। हार्डली 10-20 मिनट्स की वीडियोस हैं और आपको इनको करके काफ़ी अच्छा जो है लगेगा, कॉन्फिडेंस फील होगा। हम बढ़ते हैं आगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग। बेटा, गाइडेंस एंड काउंसलिंग का प्राइमरी गोल क्या रहता है? जल्दी से मैं चाहूंगी आप सभी जल्दी से अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखें। यस, यस, द करेक्ट आंसर इज सी। Next, move on to slide. Which of the following is not a key role of an educational counselor? बेटा, एजुकेशनल काउंसलर का कौन सा रोल नहीं है? Yes, the correct answer is creating lesson plans for teacher. Obviously, टीचर को लेसन प्लान बनाने, ना कि एजुकेशनल काउंसलर को। आगे बढ़ते हैं। Which of the following is an example of developmental guidance approach? Developmental guidance approach: conducting aptitude test, assisting student with course selection, providing counseling for personal issues, organizing career fairs. Yes, obviously assisting student with course selection. Obviously कोई भी हम डेवलपमेंट गाइडेंस अप्रोच लेते हैं किसी से, तो वो किसके लिए होगा? वो कोर्स सिलेक्शन के लिए रहेगा। A student is facing difficulty in managing their time effectively. Which type of counseling is most appropriate for this situation? Yes, the correct answer is B, academic counseling. Next question. The term self-concept refers to a person. Self-concept जो है वो क्या है? Yes, the correct answer is A, perception of their ability and skills. Yes, next question. Which of the following is an example of a proactive counseling technique? Yes, the correct answer is proactive counseling technique का क्या example होगा? Providing immediate crisis intervention, conducting group therapy session, developing study skill workshops, or referring student to external agencies. Yes, the correct answer is developing study skill workshops. Next question. A student consistently demonstrate low self-esteem and lack confidence in their ability. Which counseling approach would be most beneficial? इनमें से कोई बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा लो एस्टीम फील कर रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो कौन सी काउंसलिंग जो है उसके लिए बेनिफिशियल रहेगी? Yes, the person centered counseling. Obviously person centered counseling approach जो है वो उसके लिए best रहेगी. The purpose of conducting career counseling is to, करियर काउंसलिंग क्यों की जाती है? हेल्प स्टूडेंट एक्सप्लोर डिफरेंट करियर ऑप्शंस, प्रोवाइड एकेडमिक ट्यूटरिंग एंड सपोर्ट, असिस्ट स्टूडेंट इन इम्प्रूविंग देयर स्टडी स्किल और एड्रेस पर्सनल एंड इमोशनल इश्यूज. Yes, the correct answer is help students explore different career options. Next, which of the following is a key component of effective educational guidance and counseling program? Yes, involving parents and guardians. Next question.
Which of the following is a characteristic of an effective educational counselor? इफेक्टिव एजुकेशनल काउंसलर का क्या करेक्टरिस्टिक होगा? यस, सी, डेमोन्स्ट्रेटिंग एम्पैथी एंड एक्टिव लिसनिंग स्किल्स. Next question. The purpose of a standardized career interest inventory is to. Standardized career interest inventory अगर हम बना रहे हैं तो हम हमारा पर्पस क्या रहेगा? काउंसलर जो बनाते हैं उनका पर्पस क्या होगा? Yes, identify student career preferences. Career preferences नीट करना है आगे, फर्दर कोई और ऑप्शन है तो उसके जो करियर प्रेफरेंसेस है वो हम बना रहे हैं. नेक्स्ट चलते हैं. A student is struggling with anxiety related to test taking. Which counseling technique is most appropriate? Yes, बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो जाती है जब भी कोई टेस्ट आने वाला होता है, बहुत ज़्यादा. तो इस तरह इस सिचुएशन में काउंसलिंग टेक्निक कौन सी होगी? Yes, the correct answer is relaxation technique. Next, which of the following is an ethical responsibility of an educational counselor? एजुकेशनल काउंसलर की एक एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनमें से क्या हो सकती है? आप जल्दी से ऑप्शन पढ़िए. मैं चाहती हूँ कि आप लोग पढ़े इन ऑप्शंस को और अपनी स्पीड को जो है काफ़ी हद तक बढ़ाएं. Sharing student personal information with teachers, providing unsolicited advice to student parents, maintaining confidentiality within legal and ethical limits, discouraging students from pursuing their passion. Yes, the correct answer is C, maintaining confidentiality within legal and ethical limits. Next question. The primary purpose of a guidance curriculum is to. The guidance curriculum जो बनाया जाएगा उसका primary purpose क्या होगा? Develop student career related skill. Next question. An educational counseling, the term referral refers to. तो एजुकेशनल काउंसलिंग में रेफरल वर्ड जो है वो किस लिए रेफर किया जाता है? आगे बढ़ने से मैं ये बता दूं कि काउंसलिंग में डबल एल भी होता है और सिंगल एल, दोनों ही जो वर्ड्स हैं वो यूज किए जाते हैं काउंसलिंग एंड काउंसलिंग में. तो ज़्यादा इसमें डिवीजन रहता नहीं है. यस, द टर्म रेफरल रेफर्स टू. बेटा रेफरल अगर हम यूज कर रहे हैं एजुकेशनल काउंसलिंग में तो वो क्या रेफर करता है? Yes, the correct answer is redirecting student to other professionals or services. Next question. A student is experiencing frequent conflict with their classmate. Which counseling technique is most appropriate? एक स्टूडेंट जो है वो कंफ्लिक्ट हो रहा है अपने क्लासमेट उसके साथ, उसका कंफ्लिक्ट काफी ज्यादा हो रहा है, तो किस तरह की काउंसलिंग टेक्निक ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगी? यस, द रोल प्लेइंग एक्सरसाइज जो है वो हम करा सकते हैं. Which of the following is an example of an internal factor that influences career decision making? Yes, the correct answer is personal interest. The primary purpose of a need assessment in educational counseling is to. Need assessment in educational counseling is to. Yes, option पढ़िए. गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट नीड्स को पता करना और उनके कंसर्न्स को पता करना. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन ओपन एंडेड काउंसलिंग क्वेश्चन? हमने, अगर आपको याद हो, जिन्होंने फर्स्ट सीरीज देखी है उसमें भी ओपन एंडेड क्वेश्चन था. यहाँ पे है ओपन एंडेड काउंसलिंग क्वेश्चन. दोनों ही क्वेश्चंस में थोड़ा सा डिफरेंस है, आप ध्यान दीजिए. ओपन एंडेड काउंसलिंग क्वेश्चन क्या रहेगा? Are you feeling better now? Why did you make that decision? Have you considered other options? Would you like to talk about it more? तो आप देख सकते हैं आर यू फीलिंग बेटर नाउ में हम फर्दर क्वेश्चंस नहीं कर सकते, लेकिन जो बी ऑप्शन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें हम फर्दर डिसीजन, फर्दर इंटरेक्शन जो है कर सकते हैं. व्हाई डिड यू मेक दैट डिसीजन? तो ओपन एंडेड काउंसलिंग क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इफेक्टिव काउंसलिंग रिलेशनशिप?
यस, डायरेक्टिव एंड अथॉरिटिव अप्रोच। ये 20 क्वेश्चन जो थे वो हमारे इस पे गाइडेंस एंड काउंसलिंग पे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एनसीएफ पे है, और एनसीएफ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपके आने वाले हैं, आपको ज़रूर दिखेंगे। और जिनको एनसीएफ नहीं आ रहा है उनकी तैयारी अभी भी नहीं हुई है। तो अगर आप ये 10 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आगे के आपको रिकॉल हो जाएगा पूरा टॉपिक, और आई एम वेरी मच श्योर आप एनसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो कर पाएंगे। तो आइए करते हैं, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द एनसीएफ 2005 इज अ फ्रेमवर्क फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। यस, किसके लिए था एनसीएफ 2005? बहुत ही कॉमन जैसा क्वेश्चन है और बहुत इजी भी है। यस, स्कूल एजुकेशन के लिए। Next, the NCF 2005 was introduced by which organization? Yes, इंडियन गवर्नमेंट ने किया था, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन रह थी वो है NCERT। तो इंडियन गवर्नमेंट में किसके थ्रू हुआ था? एनसीईआरटी को ये असाइन किया गया था और इसने ये इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की फोकस ऑफ द एनसीएफ 2005? तो इसका आंसर जो है क्लियरली आपको पता होगा। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पे इस यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था। NCF 2005 emphasized the importance of education for which age group? किन एज ग्रुप को ध्यान में रख के NCF बनाया गया? तो चिल्ड्रन और एडोलेसेंस। चिल्ड्रन और एडोलेसेंस आप कह सकते हो 3 साल से लेके 18 साल तक के बच्चे जो हैं वो इस एज ग्रुप में आ जाते हैं, तो वो उनको ध्यान में रख के एनसीएफ बनाया गया। द एनसीएफ 2005 एडवोकेट फॉर अ करिकुलम दैट प्रमोट्स। करिकुलम ऐसा किया गया, वो किस चीज को प्रमोट करता है? मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग, स्पेशलाइजेशन इन वन सब्जेक्ट ओनली, मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट, एक्सक्लूजन ऑफ को करिकुलर एक्टिविटी। यस, हरियम। यस, 25th का जो आंसर है वो है ए, मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग पे ज्यादा अप्रोच किया गया। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है आप मुझे मेल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 एजुकेशन शुड फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ। अकॉर्डिंग टू द एनसीएफ 2005 एजुकेशन शुड फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ। यस, एजुकेशन किस पे फोकस की गई थी? हॉलिस्टिक डेवलपमेंट पे। हॉलिस्टिक का मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट पे जो है वो फोकस किया गया था। 27 क्वेश्चन देख लीजिए। द एनसीएफ 2005 रिकमेंडेड अ शिफ्ट फ्रॉम टीचर सेंटर क्लासरूम टू। बच्चे टीचर सेंटर से थोड़ा सा हट के एनसीएफ ने किस पे शिफ्ट किया था? स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन पे, पीयर टीचिंग लर्निंग पे, इंडिविजुअल कंपटीशन पे, और रिजिड क्लासरूम स्ट्रक्चर पे। Yes, the correct answer is B, peer teaching and learning। मतलब peer teaching and learning, अपने अपने आसपास के बच्चों से सीखो, उनको पढ़ाओ, इस तरह की एक्टिविटीज पे भी एनसीएफ ने बहुत ज़्यादा फोकस किया। एनसीएफ 2005 encourages the use of which teaching method? किस टीचिंग मेथड को ज़्यादा यूज करने की बात की गई है? Yes, lecture-based instruction, hands-on activity and experiment, homework and assignment only, online learning platform only. Yes, the correct answer is hands-on activity. Next question. Which of the following is not a principle of the NCF 2005? इनमें से कौन सा principle NCF का नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है सी, यूनिफॉर्मिटी इन असेसमेंट। नहीं, इसमें असेसमेंट के डिफरेंट तरीके जो हैं वो दिए गए हैं, यूनिफॉर्म नहीं था। इंक्लूजन था, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी थी करिकुलम में, लर्निंग बियॉन्ड टेक्स्ट, ये सारे प्रिंसिपल जो थे वो एनसीएफ के थे। आगे चलते हैं। द एनसीएफ 2005 हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर प्रमोटिंग। यस, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। थर्ड, बी, कल्चरल हेरिटेज। वेरी नाइस। आगे चलते हैं। हमारे अब जो क्वेश्चन आएंगे वो हमारे कमीशंस पे है और जो हमारी एजुकेशनल पॉलिसीज पे है। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन जो है आप एजुकेशन पॉलिसी एंड कमीशंस पे देख पाओगे। Which commission recommended the introduction of 10+2 system of education in India?
यस, कोठारी कमीशन। नेक्स्ट चलते हैं। The right the Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009 is also known as, ऐसे एक्ट को क्या बोला जाता है? 32 SDRTE Act. Next, the national policy on education was first formulated. सबसे पहले जो national policy on education था वो कब बनी थी? को ये बहुत ही इजी है और इनको करके जाना है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बेसिक भी है। यस, 1986। नेक्स्ट, द डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम was launched in which year? DPEP was launched in which year? 34 C, 1996, जो कि बाद में जाके सर्व शिक्षा अभियान में चेंज हो गया था। आगे चलते हैं, 35 क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी रिलेटेड टू एजुकेशन इन इंडिया? यस, इसमें से कौन सी जो है वो नहीं है बच्चे? एनटीए नहीं है, बाकी सारी यूजीसी, एनसीईआरटी, एआईसीटीई, ये सारी जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडीज है। आगे चलते हैं। द मंडल कमीशन रिपोर्ट इज एसोसिएटेड विद, मंडल कमीशन रिपोर्ट जो थी वो किससे एसोसिएटेड है? रिजर्वेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से रिलेटेड है। 36 क्वेश्चन 37 क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कमेटी रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ केंद्रीय विद्यालय इन इंडिया? केवीएस जो है वो किस ने रिकमेंड किए थे? यस, the correct answer is C, Radha Krishnan committee ने। Next question, which policy aim to achieve 100% literacy in India? 100% literacy in India किस policy ने aim किया था? Yes, the correct answer is B, सर्व शिक्षा अभियान। Next, the National Curriculum Framework was first introduced in, NCF जो है वो first introduce किसने किया था? 1986 में। नेक्स्ट, विच कमीशन रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन? यस, एनसीटीई की बात कौन से कमीशन ने कही थी? सी, राधा कृष्णन कमीशन ने एनसीटीई की बात कही थी। द राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जिसे आरएमएस से बोला जाता है, इन्होंने किस पे फोकस किया था? Yes, the correct answer is secondary education. Secondary education. The National Policy on Education 1986 aim to, yes, 1986 की जो पॉलिसी आई थी एनपीई, उसमें क्या फोकस था, क्या एम था? जल्दी से अपना आंसर आप बताइए। यस, इनहैंस द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी बढ़ाई जाए। द यूजीसी नेट एग्जाम इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन एलिजिबिलिटी फॉर, ये, यस, yes, the correct answer is B, recruitment of teacher in universities and college. Which commission recommended the establishment of the Indian Institute of Technology? किस कमीशन ने आईआईटीज खोलने की बात करी थी? अगेन कोठारी कमीशन। तो कोठारी कमीशन आप जरूर पढ़ के जाएंगे। कोठारी, अगर बाकी कमीशन आपने नहीं पढ़ने हैं तो कोठारी कमीशन, और फिर उसके बाद एनपीई एंड देन नेप पॉलिसी जो है, आप ये तीनों पॉलिसीज प्लस एनसीएफ, इनको जो जो करके जाएंगे वो जरूर 30 आउट ऑफ 30 जो है अपनी लेके आएंगे। तब नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन, yes, the correct answer is B, 2009। देखो, ये जितने भी क्वेश्चंस आप कर रहे हैं, इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपको ऐसा है कि आपको कंटेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप इनको क्वेश्चंस को करके अपने टॉपिक को रिकॉल कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, और एक अलग सा कॉन्फिडेंस जो है वो आप में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पॉलिसी एम टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन एज 6 to 14 ईयर?
यस, 46 क्वेश्चन है। किसने ये बात करी थी? बहुत इजी क्वेश्चन है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, जिसको इम्प्लीमेंट 2010 में किया गया। नेक्स्ट, विच कमेटी रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन? यस, किस कमेटी ने किया था? बहुत इजी है अगेन, फिर भी। ओके, कोठारी कमेटी में। नेक्स्ट, द मिड डे मील स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन इंडिया। बेटा, मिड डे मील जो आई थी, आपको पता है कि आजकल स्कूल में खाना मिलता है, तो वो जो स्कीम है वो कब लॉन्च हुई थी? यस, द करेक्ट आंसर इज 1994 में। नेक्स्ट, द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, किस लिए, क्या करती है ये NCERT? यस, द करेक्ट आंसर इज डेवलपिंग स्कूल टेक्स्ट बुक। बेटा, टेक्स्ट बुक बनाती है, बताया है हमें, हम एनसीईआरटी ही पढ़ते हैं सब। विच कमीशन रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी, ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। एंड द करेक्ट आंसर इज, एक्चुअली द करेक्ट आंसर इज राधा कृष्णन। पीछे थोड़ा गलत हो गया, इसके बारे में मैं सोच भी रही थी, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन डाल दिया है। तो आप याद कर लेना कि राधा कृष्ण कमीशन ने यूजीसी जो है वो रिकमेंड किया था। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए चैनल को।